हेलो स्टूडेंट्स। तो नाउ आई एम हियर with your forthcoming topics. As you all looking on the board that what is the flow chart of the ongoing chapter. The chapter's name is force and pressure, है ना। बड़ा चैप्टर है ये, बड़ा चैप्टर है। ये आप ना समझें कि बस जितना किताब में लिखा हुआ है उतना पढ़ लिए और खेल खत्म हो गया। नो, हालांकि मैंने एक वन शॉट भी बनाया है इसका। फोर्स एंड प्रेशर को मैंने सिर्फ 2 पार्ट में खत्म कर दिया था। वो बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया था, वो बहुत शॉर्ट था। वो उसमें एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव था बट शॉर्ट था। तो उसी चीज को हमने फिर से शुरू किया है। एंड नाउ आई एम कमेंसिंग। सो ऑल ऑफ यू सिट डाउन with your pen, copies, books, pencils, and whatever things you have, and make the heading, today's heading. What is the heading actually? Caption is types of force. Chapter's name is force and pressure. First of all, you make this flow chart. You pause the video and make this flow chart. One by one I will discuss about these all the things today. As far as types of force is concerned, I will tell to you all that types of force is finally categorized into 2 parts: contact force and non-contact force. Contact force means you can understand that whenever 2 physical bodies remain in contact, as muscular force and frictional force. I will discuss about it. Non-contact force, it is also known as the force at a distance. It is also known as force at a distance. क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? फोर्स एट ए डिस्टेंस लिखिए इसको पहले आप। फोर्स एट अ डिस्टेंस, ठीक है। ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो फोर्स एट ए डिस्टेंस। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। मस्कुलर फोर्स। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? Muscular force is also known as biological force. देखो, whatever things do we eat, whatever things do we eat, actually what happens, that food gets converted into energy ultimately, and it is stored in our body in the form of energy. Clear? And whenever we use and whenever we do some work, so that energy, what energy was already consumed, what energy was already absorbed or stored by our body from the nutrients of the food, is released. मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक ईंट है रखा हुआ, and now you want to displace, push or pull this body, this brick. So what you have to do? You have to apply a muscular force on it. Clear? Clear है ना? Mitochondria, have you heard the name of mitochondria? Is the powerhouse of the cell. Clear? And the energy is stored in our body in the form of ATP. And finally, that muscular energy
is required to push this body or to pull this body. If you do some work continuously, suppose you have a body of 100 kilogram. Now suppose this is the body of 100 kilogram and now you are pushing this body continuously, then what will happen? You will get tired. Clear? So you will get tired ultimately. Why? Because now you are doing some work. You are losing your biological energy. You are losing your energy, whatever energy you have in your body, associated with your body. So this is the thing I will tell to you. Now try to understand. Clear? So muscular force comes in the category of contact force. Why? Because when you apply force, this muscular force remains in the contact of its surface. Remains in the contact of its surface. That's why muscular force is understood as, is categorized as contact force. You are looking that in muscular force, the force of contact, clear? This force having a contact, physical contact with this body, surface of this body, this surface of the body. So it is categorized as muscular force. क्लियर हो गया ना यहाँ पर? ठीक है, समझिए इसको थोड़ा. Now finally we will go ahead and we will study about frictional force. Frictional force. This is also one of the kinds of contact force. क्या होता है? Suppose you have a football and you have kicked it. You have a football and you have kicked it in the field on the surface of the ground. So what will happen? This ball will roll forward. This ball will roll forward. It will move forward. Suppose you have kicked this ball with a force of F. Suppose it is 50 Newton. Clear? Then what will happen? This body will roll and go forward. But after covering some distance, what will happen? After covering some distance, the ball, the football or the body will come at rest ultimately. और आपको याद होगा मैंने कहा था कि फोर्स जो है किसी बॉडी के मोशन को कम कर देता है या फिर उसको रोक देता है. कहा था, याद है ना ये बात आपको? तो आखिर ऐसा कौन सा, उधर से ना ही कोई इसको छुआ है ना ही कोई इसको रोका है. दिस बॉल कम्स एट रेस्ट अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू seconds. Then what happens? Actually, this is the force of friction in between the surface of the ball and the ground. देखो क्या होता है मैं बताता हूं. जो ग्राउंड है ना उस पर इरेगुलरिटीज होता है और जो फुटबॉल है उस पर भी इरेगुलरिटीज होता है. दुनिया का ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है जो फ्रिक्शन फ्री हो, इरेगुलरिटीज फ्री हो. ठीक है ना? फोको ट्राइड टू फाइंड आउट, फोको was one of the scientists, one of the greatest scientists of modern era, and he found the value of speed of light. And when he was
finding out the speed of light, he made a rotating mirror in his device, in his system, and that mirror even was not friction free. Clear? Even that mirror also was not 100% reflector. I will tell to you, reflector. So that mirror was even not 100% reflector. So how can we make another surface that it will not have any irregularities? हालांकि वहां बातें कुछ और भी है, लाइट का उस मिरर में ऑब्जर्व होने के लिए बातें कुछ और भी है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो क्या होता है कि इस फुटबॉल पर जो इरेगुलरिटीज है, जो रफनेस है फुटबॉल के सरफेस पर, और ग्राउंड पर जो इरेगुलरिटीज है, वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, आपस में ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होते जाते हैं, ब्लॉक होते जाते हैं, धीरे 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 क्या होता है, ये इरेगुलरिटीज उसको रोक देता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वजह से ये बॉल अल्टीमेटली जाकर के रुक जाता है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FF, इट टेक्स प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये जो फोर्स आप लगाते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए आप इसको पहले अच्छे से। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फ्रिक्शन को भी हमने समझा। मान लो तुमको डिफाइन करने आ गया, डिफाइन मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, तो आप लिखोगे मस्कुलर फोर्स इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल फोर्स, और मस्कुलर फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स व्हाट वी अप्लाई ऑन ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स in between any body and any other surface remain in contact is called frictional force। और फ्रिक्शनल फोर्स का एक और डिफिनीशन बता देता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स का एक और डिफिनीशन बता देता हूं, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का एक और डिफिनीशन बहुत आसान है भाई। फ्रिक्शनल फोर्स or force of friction is defined as a force that opposes the motion of a body। Force of friction is defined as a force that opposes the motion of a body। ठीक है, देखिए इसको पहले आप यहां तक समझ गए ना आप लोग बातों को, अच्छी बात है। तो हमने कांटेक्ट फोर्स को विस्तार से पढ़ लिया। बारी आती है नॉन कांटेक्ट फोर्स की। ठीक है, किसकी बारी आती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स की। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स को जैसा कि मैंने वहां लिखा है, फोर्स एट ए डिस्टेंस। ठीक है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स को जैसा कि मैंने अब लिख दिया है, फोर्स एट ए डिस्टेंस मीन्स नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज टेक्स प्लेस एट ए डिस्टेंस। इन दिस टाइप ऑफ फोर्स टू फिजिकल बॉडीज विल नॉट रिमेन इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। दिस फोर्स टेक्स प्लेस एट ए डिस्टेंस। समझते हैं कि ये क्या है, एक एक करके समझते हैं इसको हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, बताइए क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो
ये होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। द बॉडी falling down, the body is being attracted by the earth, नहीं, तो that is called ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो जैसे यहां पर ये बॉडी है, इसको मैंने यहां से रिलीज कर दिया, ठीक है, क्या हुआ, ये यहां है, ये नीचे आ गया, मतलब इस बॉडी में और अर्थ में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, डिस्पाइट दैट दिस बॉडी इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, मीन्स द अर्थ इज exerting a force on this body and due to which this body is falling down. So this is one of the examples of gravitational force. This is one of the examples of gravitational force. So gravitational force is one of the kinds of non-contact force. आफ्टर नोइंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखो, ईच एंड एवरी बॉडी व्हेन इट फॉल्स, एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दिस बॉडी इज टू बी ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स सेंटर. And if mass of the body is m and mass of the earth is m e, then this body, means the earth, will attract this body whose mass is m with a force of mg. With a force of mg. ये क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी का मास अगर 50 किलोग्राम है, ठीक है, तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा होगा, ठीक है ना। तो आप निकाल लो इसको, कितना होता है, मास कितना दे रखा है 50 किलोग्राम, और स्मॉल जी का वैल्यू मैंने क्या बताया है 10, तो 500 न्यूटन, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस मच फोर्स द बॉडी इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तो हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बातचीत। एक्चुअली mg जो मैंने लिखा वो उस बॉडी का वेट है, और वेट जो है वो एक तरह का फोर्स होता है। वेट किस तरह का फोर्स होता है, वो वेट जो है वो एक फोर्स होता है, उस तरह का फोर्स होता है कि जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने तरफ खींचता है। बात समझ गए। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके किताब में लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन हमारे हिसाब से उसमें जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है, चार्जेज एट रेस्ट की बात होती है इसमें। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है, चार्जेज एट रेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। इसको कैसे समझेंगे, बहुत आसान है समझना, मैं बता देता हूं। आप जो है एक कागज का टुकड़ा कागज ले लो, ठीक है, और इसके छोटे छोटे पार्ट बना दो, तोड़ दो इसको कागज के टुकड़े में, बहुत छोटे छोटे कागज के टुकड़े में इसको तोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद आप एक कॉम्ब ले लो, एक कंघी ले लो, और अपने ड्राई हेयर पर उसको रब कर लो, ठीक है, उसके ड्राई हेयर पर रब कर लो अच्छे से। तो क्या होगा पता है, फिर जब उस रब्ड कॉम्ब को आप इस बीट्स ऑफ पेपर के नजदीक लाओगे तो ये सभी बीट्स ऑफ पेपर जो है उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे।
अलग से ही, दूर से ही, एट ए डिस्टेंस ही ये सारे बिट्स ऑफ पेपर उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। और तुम लोग तो ऐसा एक्टिविटी बहुत बार कर चुके हो, अपने स्कूल में भी किए हो, घर पर भी करते हो है ना। तो ये है मुद्दा यहाँ पर हम लोगों के लिए। जब कभी भी लेजर मिला तो बच्चे जो है खेलने लगते हैं, है ना। क्या करते हैं, स्केल लिए, रब कर लिए ड्राई हेयर पर और बिट्स ऑफ पेपर बना करके उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। देखो होता क्या है कि एज यू रब योर कॉम्ब ऑन योर ड्राई हेयर, तो क्या होता है बताइए, आवर्स बॉडी loses charges, our body loses charges, and that lost charges from our body, means to say that from the surface of the hair, is accumulated, is associated with the comb। ठीक है ना। अब क्या हुआ, उस कॉम्ब पर या उस स्केल पर एक्सेस चार्ज हैं, पहले जितना चार्ज था उससे ज्यादा चार्ज हैं। तो क्या होगा, वो स्केल के पास अब ज्यादा चार्ज है। देखो जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इन सभी चीजों की जब बात करते हैं ना, तो वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। जहां कहीं भी आपको इलेक्ट्रो से रिलेटेड बातें आ गई, वो सब हम लोग बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात करते हैं यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो तो आपको पता ही है, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो तो आपको पता ही है, बहुत अच्छी बात है। तो नाउ आवर्स हेयर, आवर्स बॉडी losing charges, means here it is electrons, and that electrons are being trapped by, that electrons are accumulated with the comb or with the scale। ठीक है ना। then what will happen, अब उस कॉम्ब पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंघी है आपके पास, कॉम्ब मतलब कंघी, जो कंघी है आपके पास जिसे आप बाल बनाते हो, बाल झाड़ते हो, उस पर क्या है, अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा चार्ज है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, या यूं कहें कि मोर इलेक्ट्रॉन्स है, उस पर क्या है नाउ, मोर इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो अब क्या होगा, वो जो कॉम्ब है उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से वो कॉम्ब अब आपका निगेटिवली चार्ज्ड हो चुका है। ठीक है। वो क्या हो चुका है, निगेटिवली चार्ज्ड हो चुका है। तो होता क्या है कि जो बॉडी, मान लो कि तुम अगर कोई दो बॉडी को रब कर रहे हो, तो उसमें से कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कोई एक बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है उस बॉडी में, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है उस बॉडी में। ठीक है ना। तो उसके वजह से क्या हुआ, वहां पर अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया उस बॉडी में, तो वो बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स अब कम गए, उसने अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन किया वो निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, पता है ना ये बात। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब चार्ज होता है। ये कूलम्ब जो है एक साइंटिस्ट के नाम पर दे रखा गया है, ठीक है ना, कूलम्ब। ये जो कूलम्ब है कैपिटल C से हम लोग इसको जनरली सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, कूलम्ब, ठीक है। तो जो कूलम्ब साहब थे ना, उन्हीं के ऑनर में चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब रख दिया गया, है ना, कूलम्ब, है ना, कूलम्ब रख दिया गया। क्योंकि कूलम्ब साहब ने ही कूलम्ब्स लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उन्होंने बताया था कि 1 कूलम्ब चार्ज का क्या मतलब होता है और 1 कूलम्ब चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सभी बातें हो गई यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, उस कॉम्ब के ऊपर, उस कंघी के ऊपर बहुत सारे चार्जेज आ चुके हैं। आपका कॉम्ब अब निगेटिवली चार्ज हो गया। ये बिट्स ऑफ पेपर यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म में है। तो क्या होगा, वो कॉम्ब जो है इसको खींच लेगा अपने तरफ, ठीक है ना। होता क्या है, देखो चार्जेज में अट्रैक्शन और रिपल्सन का क्या है मामला। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। नहीं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्जेस हैं तो रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव दो चार्जेस हैं तो रिपेल करेगा, और पॉजिटिव निगेटिव दो चार्जेस हैं अपने उसी फील्ड में तो क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा वो। नहीं समझे। अपोजिट चार्जेस जैसे मैग्नेट में भी तुमको पता है, अगर अपोजिट पोल्स है तो अट्रैक्शन, लाइक पोल्स है तो रिपल्सन, ठीक है ना। लेकिन एक बात और है कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडीज है, न्यूट्रल, ये मान लो ये जो बिट्स ऑफ पेपर है ये न्यूट्रल है, इसको मैंने कुछ नहीं किया था, इसको सिर्फ मैंने यहां से काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने यहां पर रख दिया था। अब ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो और हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज्ड कॉम्ब जो है उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, वो चार्ज्ड है, तो वो क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींच लेगा। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी एक चार्ज बॉडी अपने तरफ खींच लेता है, चाहे वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो। बात समझिए इस चीज को, बात समझ रहे हो मेरी। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे ही आप कंघी को इस पीस ऑफ पेपर के नजदीक लाते हो, ठीक है, जैसे ही इस कंघी को, सपोज मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं कॉम्ब का, जैसे ही आप इस कॉम्ब को इसके नजदीक लाते हो, क्या होता है, सभी बिट्स ऑफ पेपर या जितने भी बिट्स ऑफ पेपर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं वो सब इधर अट्रैक्ट होने लगता है। देखो मैं क्या करता हूं, मैं क्या बता रहा हूं सो समझो। इसको तुम मैग्नेट वाले टर्म्स से समझ लो, क्योंकि मैग्नेट से तुम ज्यादा, आई विल टेल टू यू कि मैग्नेट से तुम ज्यादा अवेयर हो, है ना। मैग्नेट के साथ तुम ज्यादा पता है तुमको मैग्नेट के बारे में, है ना। देखो अगर हमारे पास दो मैग्नेट है, यहाँ पर N है और यहाँ पर S है, और यहाँ पर भी S है और यहाँ पर भी N है, तो ये नजदीक है, लाइक पोल्स है, क्या हुआ, रिपेल हो जाएगा। इसको अगर ऐसे घुमा के रख दें या फिर इसको ऐसे घुमा के रख दें तो अट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो हुई तब की बातें जब ये मैग्नेट है। लेकिन मान लो यहाँ पर मैग्नेट के बदले कोई एक
मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो जैसे आयरन का यहाँ पर एक नेल है, ठीक है, मान लो एक आयरन का नेल है हमारे पास, तो क्या होगा, तुम इस मैग्नेट को ऐसे रखो या इसको ऐसे घुमा दो, ये आयरन नेल हमेशा इसमें अट्रैक्ट ही होगा, रिपेल नहीं होगा। बात समझ रहे हो मेरी? इसलिए कहा जाता है कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ अ मैग्नेट। सिर्फ अट्रैक्शन से, अगर कोई मैग्नेट किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मैग्नेट है या सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन रिपेल कर रहा है अगर, तो निश्चित रूप से वो मैग्नेट है, अदर मैग्नेटिक मटेरियल। कुछ इसी तरह का वर्कआउट इस केस में भी होता है। यहां पर इस कंघी पर अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वजह से ये निगेटिवली चार्ज है और ये बिट्स ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या समझे? ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, ठीक है, और पॉज करके इसको समझ लीजिए पहले। अब आगे देखा जाए थोड़ा, तो ये तो हुई इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बातें। तो तुम इसमें देखे हो कि क्या देखे हैं हम लोग इसमें? हम लोगों ने देखा कि बीट्स ऑफ पेपर यहां पर है और वो कॉम्ब अभी यहीं पर है, ये कॉम्ब है मान लो, ठीक है, ये कॉम्ब अभी यहीं पर है, ये बीट्स ऑफ पेपर इधर अट्रैक्ट होने लगे। जितने भी बीट्स ऑफ पेपर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे, ठीक है, वो सभी बीट्स ऑफ पेपर इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा। मैं यहां पर बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, नहीं, ये सब फील्ड्स होते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लो तुम्हारे पास यहां पर बिट्स ऑफ पेपर है, ये है बिट्स ऑफ पेपर, ये मान लो बिट्स ऑफ पेपर है, ठीक है। अब हम इस कंघी को, रब्ड कॉम्ब को इसके तरफ नजदीक ला रहे हैं। ये बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अब जैसे ही थोड़ा सा और नजदीक जाओगे अट्रैक्ट होने लगेगा। मतलब ये हुआ कि इस कंघी के आसपास जो फील्ड है ना, जहां से ये बिट्स ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, उस रीजन को हम लोग इस बॉडी का, इस चार्ज बॉडी का फील्ड कहेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है इसलिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। वही चीज है मैग्नेट में भी, मैग्नेटिक फील्ड। जब तक दो मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें से एक मैग्नेट होना चाहिए, है ना। अब मान लो तुम दो आयरन नेल ले लेते हो और वो भी तो मैग्नेटिक मटेरियल है, और आयरन नेल ले लेते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो रिपेल नहीं होगा। तो उसी तरह से एक तो मैग्नेट होना ही चाहिए, ठीक है, तो उसका फील्ड होना चाहिए। जहां जैसे ही एक मैग्नेटिक मटेरियल उसके फील्ड में आता है वो अट्रैक्ट हो जाता है। और अगर दो मैग्नेट्स ही है तो वो अट्रैक्ट भी होता है और रिपेल भी हो सकता है, वो तो उसके पोल्स पर डिपेंड करेगा। क्या सही है? ठीक है। अब इसे मान लो ये है, नीचे आ गया, क्योंकि ये जो बॉडी है ना अभी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। आप ऊपर जब जाओगे, अर्थ से ऊपर जब जाओगे, उस हाइट पर एक ऐसा जगह मिल जाएगा आपको जहां से कि अगर कोई बॉडी आप रिलीज करोगे तो नीचे नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ कि अब वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, ठीक है।
अगर तुम किसी बॉडी को 13.5 अप्रोक्सीमेटली, अगर तुम किसी बॉडी को 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर फेंक देते हो ऊपर, तो वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, वो लौट के कभी नहीं आएगा जमीन पर फिर। लेकिन अगर इससे कम रहा वो स्पीड, तो फिर वो नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग एस्केप स्पीड भी कहते हैं। हटाइए इसको भी, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। क्या चर्चा करने वाले हैं भाई, समझिए बातों को। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो कुछ भी है, अभी 8 क्लास में तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोल दिया गया है, इसका और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है, ढेरों हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ग्लास रॉड है, एक सिल्क क्लॉथ है, जब इस ग्लास रॉड को तुम सिल्क क्लॉथ पर रब करोगे, ठीक है, जब तुम इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ पर रब करोगे, तो इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो क्या होता है भाई, सोच जरा समझ लेते हैं अच्छे से। इसको आप ऐसे याद रखो, GSP, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज। जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तुम बोलोगे कि सर कैसे पता चला, है ना, क्यों हम माने इसको कि भाई ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है? तो एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। उस इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर किस नेचर का एक्सेस चार्ज है वो हमें बता देता है, ठीक है। शायद पहले आप पढ़े भी होंगे कहीं पर, 7 में थोड़ा बहुत है इसकी चर्चा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। वो भी 2 तरह का होता है, एक तो गोल्ड लीफ कॉइल होता है, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, और एक जनरल इलेक्ट्रोस्कोप होता है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। ये जो ग्लास रॉड है अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया। ये लूज कर दिया तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ा देर पहले, ठीक है, मैंने अभी बताया था अभी आपको थोड़ा देर पहले कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसका रीजन भी मैं बता चुका हूं। तो ये ग्लास रॉड अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, इसलिए ये ग्लास रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अच्छी बात है। इसका मतलब कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया।
शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, इस तरह से। हाँ, तो क्या इस बात को आपने समझा? बताइए हमको बताइए, ठीक है। अच्छे से आप समझो इसको। अच्छा, अगर एबोनाइट रॉड को कैट्स स्किन या वुलन क्लॉथ पर रब करेंगे, ठीक है। अगर एबोनाइट रॉड को कैट्स स्किन या वुलन क्लॉथ पर रब करेंगे तो इस एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इस एबोनाइट के रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करने से पॉजिटिवली चार्ज ये हो जाता है। एबोनाइट रॉड को कैट्स स्किन पर रब करने से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्जेज आ जाते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। तो अगर यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है ना। और यहां पर अगर ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज हो गया मतलब कि ये एबोनाइट रॉड ने इससे इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। दिस एबोनाइट रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैट्स स्किन और वुलन क्लॉथ व्हेन यू रब एबोनाइट रॉड ऑन विथ कैट्स स्किन, व्हेन यू रब एबोनाइट रॉड विथ कैट्स स्किन और वुलन क्लॉथ। तो ये है मामला। मतलब क्या कि अगर आप डिफरेंट नेचर का अगर मटेरियल लेते हो, अगर आप डिफरेंट नेचर का मटेरियल लेते हो ना, तो वो अलग अलग होगा, ठीक है। क्या होगा? वो अलग अलग हो जाएगा, उसका अलग अलग चार्ज होंगे। तुमने यहां पर कुछ एग्जांपल देखा अभी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक काम करते हैं, इस पर कुछ वर्कआउट करते हैं, इस पर कुछ वर्कआउट करते हैं। ये सब आपके कोर्स में है भाई। देखो, इसके बाद आ रहा है प्रेशर एंड लिक्विड प्रेशर। मैं बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूं ये चैप्टर। तो अगर आपको ये टॉपिक वॉच करना है तो मेरा हर वीडियो वॉच करते रहिए। आप नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए, आपको हर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं और कुछ बातों को समझते हैं इसी से रिलेटेड। क्योंकि ये एक बड़ा वीडियो बन जा रहा है, तो मैं प्रेशर एंड लिक्विड प्रेशर जो टॉपिक आ रहा है, इसको हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। अच्छा, मान लो कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ये रहा ग्लास का रॉड। हमारे पास ये है ग्लास का रॉड, ठीक है। इसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया, तो इस ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्जेस से भर जाएंगे ना, ये सब के सब पॉजिटिव चार्जेस से यहां पर भर जाएंगे। क्योंकि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है? ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और ग्लास रॉड लेते हैं और उसको भी
हम लोग सिल्क क्लॉथ पर रब कर देते हैं। एक और ग्लास रॉड लेते हैं और उसको भी सिल्क के क्लॉथ पर रब कर देते हैं, तो उस रॉड पर भी, इस ग्लास रॉड पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब इस ग्लास रॉड को तुम जो है एक स्टैंड के साथ थ्रेड से इसको यहां पर हैंग कर दो। ये देखो मैंने इसको हैंग कर दिया। फिगर में रफ बना रहा हूं, ये बहुत ज्यादा दिखने में थोड़ा आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। फिगर एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। इस ग्लास रॉड को मैंने यहां पर हैंग कर दिया। इसके पास पॉजिटिव चार्जेज हैं ही पहले से, नहीं, और इस ग्लास रॉड को इसके नजदीक लेकर के जाते हैं। इस ग्लास रॉड को इसके नजदीक लेकर के जाते हैं तो क्या होगा, ये इस ग्लास रॉड में और इस ग्लास रॉड में रिपल्सन होने लगेगा, क्योंकि दोनों के पास सेम चार्जेज हैं। ठीक है ना, दोनों के पास सेम चार्जेज हैं। बात समझ में थी, सेम चार्जेज है। लेकिन अगर इसी रॉड के पास, इस ग्लास रॉड के पास, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के पास हम एक एबोनाइट के रॉड लेकर के जाएं, सिल्क क्लॉथ पर कैट्स स्किन पर रब करके, ठीक है, अगर अब इस ग्लास रॉड के पास हम एक एबोनाइट रॉड को लेकर के जाएं, ठीक है, एक एबोनाइट रॉड को लेकर के जाएं, तो क्या होगा, इस पर तो भाई निगेटिव चार्जेज हैं, है ना, इस पर तो निगेटिव चार्जेज हैं, तो क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट होने लगेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। और किसी भी मटेरियल पर किसी खास मैटर से रब करने के बाद किसी खास मटेरियल को, जैसे कि मैंने यहां पर दिया था आपको ग्लास रॉड का एग्जांपल, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करने के बाद ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बात हमें पता चला इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, जब मैंने इसका टेस्ट किया तो पता चलता है। जब हम लोग इसका टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बता देता है कि इस पर कौन सा चार्ज आया। ठीक है, किसी भी बॉडी को किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ रब करने पर, ठीक है, किसी भी बॉडी को, मेरा सेंस समझो, अब आयरन को कर दोगे तो आयरन का रॉड क्या चार्ज होगा, नहीं होगा। मेटेलिक सब्सटेंस तो इस स्थिति में चार्ज नहीं ना होंगे, है ना। आप कॉम्ब ले लो, स्केल ले लो, फाइबर ले लो, कोई इस तरह का मटेरियल ले लो, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म तो आप पढ़ोगे हायर क्लास में, 12th में इसका मैकेनिज्म पढ़ाया गया है भाई, आप अभी 8 में पढ़ रहे हो। तो ये हमने देखा कि यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर दो एबोनाइट रॉड को आप ले लेते हो एक साथ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था एक फिगर के साथ, ग्लास रॉड को लेकर के मैंने बताया था, 2 ग्लास रॉड ही ले लिया था मैंने सिल्क क्लॉथ पर रब करके, वहां रिपल्सन। अगर आप यहां पर भी एबोनाइट का रॉड ले लेते हो कैट्स स्किन या वुलन क्लॉथ पर रब करके, तो वहां पर दोनों रॉड पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। दोनों को हैंग करिए, वो फिर से वहां पर रिपल्सन आपको शो करने लगेगा। ये तो एक्टिविटी है, सोचने की बात है, ठीक है ना। दिस इज द एक्टिविटी। आप समझ गए, तो समझिए इन सभी बातों को। अब देखो, अब आता है, जब हमने ये इसको समझ लिया तो भाई बात आ जाती है अब आगे फर्दर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज अनदर काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फोर्स एट ए डिस्टेंस। क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स है भाई।
तो इसके बारे में तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप दो मैग्नेट को ले आते हो, नजदीक ले आते हो, इसके फील्ड में ले आते हो, और अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ भी साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो ये रिपेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रिपेल हो जाएगा, है ना। अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे रिवर्स कर देते हो, उलट देते हो, तो क्या होगा? इसमें और इसमें फिर अट्रैक्शन होने लगेगा। देखो, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है, मैग्नेट भी तो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, एल्निको, है ना। एल्निको तो ऐसे एलॉयज हो गया, वो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। क्या होता है कि ये सब मैग्नेटिक मटेरियल है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास दो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसमें से एक तो मैग्नेट है, ये हमको पहले से पता है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें से एक मैग्नेट है, वो हमें पहले से ही पता है, ठीक है ना। मान लो कि ये है हमारा नॉन मैग्नेट। अब एक और जो मैग्नेटिक मटेरियल है, वो या तो मैग्नेटिक मटेरियल कुछ भी होगा या अनदर मैग्नेट ही होगा। तो कोई भी अदर मैग्नेटिक मटेरियल अगर है, इफ यू हैव एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल अपार्ट फ्रॉम मैग्नेट, तो वो सभी मैग्नेटिक मटेरियल इधर सिर्फ अट्रैक्ट होंगे, रिपल्सन नहीं होगा उसमें कभी भी। रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ बीइंग अ मैग्नेटिक मटेरियल एज मैग्नेट। आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, आपको पता नहीं है वो मैग्नेट है या नहीं है, तो आप उसको एक मैग्नेट जो पता है जिसके बारे में कि हाँ ये मैग्नेट है, उस नॉन मैग्नेट के नजदीक लेकर के आइए। अगर उसमें रिपल्सन होता है थोड़ा घुमाने के बाद, तो वो मैग्नेट है अदर मैग्नेटिक मटेरियल। और आप घुमाने के बाद अगर सिर्फ अट्रैक्शन ही हो रहा है, तो वो मैग्नेट नहीं हो, सिर्फ एक मैग्नेटिक मटेरियल है। सो वी कैन कंक्लूड दैट repulsion is the surest test repulsion is the surest test of magnet, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने टाइप्स ऑफ फोर्स को कवर किया, इसको विस्तार से पढ़ाया। मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। फोर्स exerted in between two magnetic materials in which one of the materials must be a magnet, then this force is called magnetic force। और ये फोर्स तभी अट्रैक्ट हो, ये फोर्स तभी इंप्लीमेंट होगा, दिस फोर्स इज इंप्लीमेंटेड ओनली, this force acts only in the case when that magnetic material comes in the magnetic field of magnet। तो कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी बच्चों को? सो हमें बताएं, ठीक है। आप कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। या आप जो भी तरीका, आई मीन टू से दैट, कि आप पहले पढ़ो अच्छे से। फिलहाल कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ पढ़िए, समझिए। और ये सब कुछ काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक टॉपिक इतना बड़ा था, ठीक है ना। वो जो मैं पहला जो एक वीडियो बना के भेजा हूं इस चैप्टर का, उसको मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट में पूरा चैप्टर को खत्म कर दिया था। वो बहुत शॉर्ट है, वो समरी है। दैट इज इन वन शॉर्ट टीचिंग, इन वन शॉट, ठीक है ना। एक ही शॉट में वो पूरा कवर मैंने कर लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूं आप सभी बच्चों को। आप बताइए हमको और पढ़िए, इसको समझिए। तो
कीप वॉचिंग माई वीडियो, सर्च इन गूगल। अगर आपको सर्च करना है, कैसे सर्च करना है हमने लास्ट वीडियो में भी बताया है। आप जिस किसी भी क्लास में हो, ठीक है, और आपको अगर साइंस या मैथ का कंटेंट चाहिए या फिर फिजिक्स और मैथ का कंटेंट चाहिए तो आप सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप 6 to 8 के बच्चे हो और अगर आपको साइंस का कंटेंट चाहिए या अगर आपको मैथ का कंटेंट चाहिए तो आप सर्च करिए यूट्यूब में या गूगल में, ठीक है ना। साइंस क्लास, जिस क्लास में आप हो उस क्लास का नाम बोलिए, साइंस क्लास दिस बाय वीरेंद्र प्रसाद, आपको साइंस का मिल जाएगा। मैथ्स क्लास दिस बाय वीरेंद्र प्रसाद, आपको मैथ्स का वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप 9 to 12 के बच्चे हो तो आपको फिजिक्स और मैथ्स के कंटेंट मिलेंगे, तो आपको फिजिक्स और मैथ्स के कंटेंट मिलेगा, या यूं कहें कि मैथ्स और फिजिक्स के कंटेंट मिलेंगे, मैथ्स एंड फिजिक्स के कंटेंट मिलेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, मैथ्स एंड फिजिक्स के कंटेंट आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो आप जिस किसी भी क्लास में हो तो आप सर्च करिए गूगल में या यूट्यूब में कि भाई मैथ्स, जिस किसी भी क्लास में हो आप, मैथ्स क्लास दिस बाय वीरेंद्र प्रसाद, फिजिक्स क्लास दिस बाय वीरेंद्र प्रसाद, या ऑल वीडियोस बाय वीरेंद्र प्रसाद, ठीक है। इधर मैथ्स और साइंस और फिजिक्स और इवन इन द कॉम्बिनेशन ऑल्सो, ठीक है ना। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो। I hope that you would have surely understood these all the things, and finally I am telling to you that must have fortitude, don't lose your courage, try to have the best marks in the examination, and I wish for that also that you must become a very good student. So thank you all of you, thank you.